नमस्कार। अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू वन एंड ऑल। जोगटा अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि एज यू ऑल नो दैट वी आर कवरिंग द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2022-23 चैप्टर वाइज। तो हम इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेके आया हूँ। So in the end of this video, you will be able to know about the public finance and the taxation, right? So ये video is regarding the chapter 3 of the economic survey. So as I have already mentioned, chapter 3 की heading is public finance and the taxation. अब what exactly is public finance? By the end of this chapter, we will be able to know exactly what. So if we see, public finance includes the study of two things: study of the government's receipt and study of the government expenditure, right? So public finance का मतलब होता है कि when we have the overall picture that how the government has earned the taxes, the non-taxes or any other income of the government, and secondly we will be able to know that how the government has spent. So two components are there in the public finance. One is government's receipts, that means government की income, and second component is government's expenditure, government का खर्चा. So before I begin, I would like to give you a picture about one important thing under this, that is the components of the public finance. The components of the public finance. देखिए, if you will be able to get this, that means these component of the public finance, you will get the overall idea that what exactly we are covering in the public finance and taxation chapter of the economic survey. So the public finance can be categorized into two important components. One is known as the receipts, and other is known as the expenditure. दो मेजर कंपोनेंट्स जो रहते हैं पब्लिक फाइनेंस के, वन इज नोन एज रिसीट्स एंड अदर इज नोन एज एक्सपेंडिचर. रिसीट्स होता है गवर्नमेंट की इनकम, दैट मीन्स गवर्नमेंट की अर्निंग इज नोन एज द रिसीट्स, और गवर्नमेंट का जो खर्चा है दैट इज नोन एज द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर. देखिए, रिसीट्स कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू टू इंपॉर्टेंट सब कंपोनेंट्स. वन इज नोन एज द revenue receipt and other is known as the capital receipt. फिर रेवेन्यू रिसीट को भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू रिसीट एंड अदर इज नोन एज द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. सो जो रिसीट का पूरा कंपोनेंट है वो हमें आइडिया देता है कि गवर्नमेंट की अर्निंग कहाँ से रिसोर्स होती है, व्हाट आर द सोर्सेज दैट इज देयर विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को इनकम जनरेट करने के क्या क्या रिसोर्सेज एंड सोर्सेज रहते हैं, दैट इज कवर्ड इन द रिसीट्स. तो आप देखेंगे रिसीट्स एक रेवेन्यू रिसीट्स होती है, एक कैपिटल रिसीट्स होती है. रेवेन्यू रिसीट्स वो पैसा, वो कमाई है गवर्नमेंट की जिसको वो डे टू डे बिजनेस से कमाती है, जैसे थ्रू टैक्सेस. सम आर कैटेगराइज्ड इनटू टैक्सेस, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आएगा, फॉल करेगा. और नॉन टैक्स रिसीट्स में देर आर सर्टेन रिसीट्स, सर्टेन इनकम कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेट अस से ऑल द पेनल्टीज, जो पेनल्टीज इम्पोज की जा रही है, ऑल द फीस, ये सारे these fall under the non-tax revenue receipts. So now coming on to this capital receipts गवर्नमेंट की वो कमाई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट, वो कमाई है कैपिटल रिसीट्स जो दैट इज गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ एसेट्स, राइट. borrowings, then we have recovery of loans. These are majorly the capital receipts, राइट. देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट यानी कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज यानी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अगर लिक्विडेट कर देती है अपने एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल
government, we have the public sector bank, that is the State Bank of India. What if the government is saying, for example, government is holding 52% of the shares of the SBI. Now government has decided that government is going to reduce the equity, that means government is going to reduce the shareholding in the SBI to only 30%. So that process of liquidating the assets of any public enterprise is exactly known as the disinvestment, right? Government कोई भी अपनी कंपनी से, कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज से, कोई भी पब्लिक एंटिटी से जब अपनी शेयर होल्डिंग कम कर देती है, हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. सो डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है दैट इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल रिसीट. और इसके अलावा बोरोविंग्स मीन्स किसी भी तरीके के लोन्स, किसी भी प्रकार के जो लोन्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो कवर होंगे बोरोविंग्स में. उसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन्स, दैट फॉर एग्जांपल कोई स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कोई या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इफ़ दे हैव गिवन दी लोन टू एनी एंटिटी, जो उसकी रिकवरी होती है प्रिंसिपल अमाउंट की, वो कहाँ पे इंक्लूड होती है? कैपिटल रिसीट्स में. वो भी गवर्नमेंट की कमाई कहलाती है. सो दीज टू थिंग्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड द कैपिटल रिसीट्स, आर द अर्निंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. फिर हम एक्सपेंडिचर कंपोनेंट की तरफ चलते हैं. एक्सपेंडिचर कंपोनेंट भी दो तरीके के होते हैं. वन इज नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर वन इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. अदर वन इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखिए, अब क्योंकि मैंने आपको बताया है एक्सपेंडिचर हेयर मीन्स गवर्नमेंट का खर्चा. ये गवर्नमेंट की कमाई थी, ये गवर्नमेंट का खर्चा है. अब खर्चा गवर्नमेंट दो तरीके से करती है. स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है. ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर स्पेंडिंग द मनी दे हैव गॉट इन टू वेज. वन इज नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कुछ खर्चे ऐसे, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जिससे ना कोई एसेट क्रिएट होता है, देयर इज नो क्रिएशन ऑफ एनी एसेट, और देयर इज नो रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटी, जिससे लाइबिलिटी भी गवर्नमेंट की रिड्यूस नहीं होती, राइट. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं गवर्नमेंट के जिससे एसेट्स कोई क्रिएट नहीं होते और कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं होती. सो यहाँ पे कैसे खर्चे होंगे? ऑल द सैलरीज, द पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, the government is spending in the health services, government is spending in the education services, ये सारे खर्चे will be included in the revenue expenditure, right. फिर capital expenditure गवर्नमेंट के वो खर्चे रहते हैं जहाँ पे assets भी create होते हैं. that means there is the creation of assets, one thing, and there is also a reduction of liability भी जहाँ पे reduce होती है. This is exactly the opposite of the revenue expenditure, जहाँ पे कोई asset नहीं create हो रहा था और साथ में कोई liability भी reduce नहीं हो रही थी. So capital expenditure में हम include करेंगे construction of the roads, the hospitals, the bridges, right. Then we will see the repayment of loans, रीपेमेंट ऑफ दी लोन्स. ये कुछ खर्चे रहते हैं गवर्नमेंट के जो वो करती है फॉर द क्रिएशन ऑफ द एसेट्स, दैट इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर. अब हम इसको वी विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ द पब्लिक फाइनेंस इन द हिमाचल प्रदेश, राइट. सो हाउ द public finance of the Himachal Pradesh has behaved this in the last financial year, we will going to cover this. So in the back end, you just remember these things. We will come to this by connecting all the stats that has been provided to us by the economic survey. Now let's go to the economic survey. Now coming on to these key highlights, first of all we have the first point says that grants from the center is the highest % of revenue receipts, followed by state-owned tax revenue. According to the financial projection, the grant from the center will be around 4% points lower in the financial year, this year's last financial year जो था. देखिए, what exactly is written here. अगर हम बात करें revenue receipts की,
रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी कमाई होती है गवर्नमेंट की, जो वो डे टू डे ऑपरेशन से, डे टू डे बिजनेस से गेन करती है, अर्न करती है। तो रेवेन्यू रिसीट्स को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट्स यानी सबसे ज़्यादा इनकम जनरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को हुई है वो हुई है ग्रांट्स से। ग्रांट्स क्या है? जो ग्रांट्स यानी कोई असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि सेंटर से स्टेट को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा कमाई रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर गवर्नमेंट की हुई है थ्रू ग्रांट्स, ग्रांट्स से हुई है। सेकंड इज स्टेट ओन टैक्सेस, टैक्सेस से हुई है, टैक्सेस जो कि रेवेन्यू रिसीट्स के टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में फॉल करता है। वी हैव सीन that we have something like the revenue receipts जिसको हमने further divide किया था the tax revenue and the non-tax revenue, right? So this is how it is. Now the second point says the state revenue receipts are 18.62% of the this is gross state domestic product. This is gross state domestic product. तो state revenue को अगर हम overall कंट्रीब्यूशन देखें कहाँ के लिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि एक टोटल वैल्यू, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, इज द टोटल वैल्यू, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द स्टेट इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो स्टेट के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनका कलेक्टिव वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसमें रेवेन्यू रिसीट्स का कंट्रीब्यूशन इज 18.62%. Now third point is economic services which include electricity, gas, water supply have consistently highest percent of the non-tax revenue. जो हम non-tax की revenue की बात करते हैं तो जो fees होती है, penalties होती है, all that has been gained under the non-tax revenue, तो उसमें सबसे ज़्यादा कमाई गवर्नमेंट की होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हमें पे करने होते हैं, गैस के चार्जेस, वाटर सप्लाई के चार्जेस, सो इट कंटिन्यूज टू बी द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें रेवेन्यू रिसीट्स की तो कंट्रीब्यूट कर रहा है 18.62%, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कौन से सेक्टर से ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड द वाटर सप्लाई, राइट। द अदर पॉइंट इज total expenditure of the state government was estimated to be 51,365 crore, out of which 40,279 crore, that is the 78%, was earmarked for revenue expenditure, followed by the capital expenditure as 10.99% and as a debt that is 10.59%. देखिए अब हम बात कर रहे हैं, इससे पहले वाले पॉइंट्स में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिसीट पार्ट, दैट मीन्स अर्निंग पार्ट की बात कर रहे थे हम। अब हम यहाँ पे दिस पॉइंट इज कवरिंग द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट का खर्चा। अगर हम गवर्नमेंट के खर्चे को देखें तो इस बार गवर्नमेंट ने जो खर्चा कर दिया है that is given in the economic survey, that is near about the 51,365 crore, जिसमें से सो टोटल एक्सपेंडिचर इस साल का कितना है, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द प्रीलिम्स। तो इस साल का खर्चा गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, दैट मींस इन द नेक्स्ट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो खर्चा है 51,365 करोड़, जिसमें से 40,279 करोड़, दैट इज द 78.42% वाज ईयरमार्क्ड फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कहने का मतलब है, देखिए वी हैव कवर्ड एक्सपेंडिचर पार्ट। एक्सपेंडिचर को हमने डिवाइड किया था द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन हियर, जो एक्सपेंडिचर है आपका, दैट टोटल एक्सपेंडिचर इज 51,365 करोड़, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 40,279 करोड़ है। सो रिमेनिंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो एंड देन the total committed expenditure is 28,059 crore, which is 54.63% of the total expenditure and 14.36% of the gross state domestic product of the financial year 2022-23. So total expenditure, total committed expenditure is with the tune of 28,059 crore rupees. And the last point of the highlight is the debt as percentage to gross state domestic product was
39.29% in the financial year 2020-21 as against the 35.25% in the financial year, right? देखिए इस पॉइंट को हम कहते हैं, दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द डेट टू जीडीपी रेशो, डेट टू जीडीपी रेशो. आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर, हम इसको आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. नाउ गोइंग फर्दर, अब हम वी विल सी दैट हाउ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड हाउ द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर हैज बिहेव्ड दिस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. अगर हम देखिए ध्यान से देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 2022-23 का, सो वी हैव गॉट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द ईयर 2022-23, राइट. सो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है हमें क्लियर पिक्चर देता है 2020-21 की. इसको हम कहते हैं एक्चुअल फिगर. फिर ये हमें एक और फिगर देता है 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे. हमें इससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, दैट वाज 2021-22, उसमें जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे. रिवाइज्ड एस्टिमेट्स मींस, देखिए, व्हेनेवर you must be knowing that whenever there is the introduction of the budget एक साल के लिए निकलता है, वो एक साल की एस्टिमेशन होती है. 6 महीने बाद, यानी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट, दैट हैपन्स ऑन द 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर. 1 अप्रैल जब से नया बजट लागू होता है, उसके 6 महीने बाद एक एस्टिमेट आता है कि what exactly has been estimate, जो एस्टिमेट किया गया था बजट में, वो हमने खर्चा कितना किया है टिल दी 6 मंथ. तो उस एस्टिमेट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट, राइट. सो रिवाइज्ड एस्टिमेट भी हमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022-23 ने दिया है. और लास्टली इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल प्रदेश का है 22 और 23 का, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसने हमें बजट एस्टिमेट्स भी दिए हैं इस, यानी पिछले, क्योंकि बाय द टाइम इट हैज बीन रिलीज्ड तब तक अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ होता. इसीलिए जो इकोनॉमिक सर्वे हमें एस्टिमेट देता है, दोज आर नोन एज दी बजट एस्टिमेट्स, राइट. तो हम इसकी फिगर्स देखने की कोशिश करते हैं. अब हम इसको डिवाइड करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, यानी जो कमाई है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू. सो रिसीट्स को हमने डिवाइड किया था इन दी रेवेन्यू रिसीट्स एंड दी कैपिटल रिसीट्स. तो हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स से इस साल these figures are in the crore. We are expecting 36,375 crore. इसके साथ जिसमें कि टैक्स रेवेन्यू होगी 17,660. देन दी स्टेट ओन्ड यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू कितनी होगी? नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे आपको मैंने बता दिया है, जिसमें पेनल्टीज, फीस, फाइन्स ये सब इंक्लूड होते हैं, दैट विल बी 17,660 करोड़. एंड यू कैन सी देयर इज द इंक्रीज इन एवरीथिंग, increase in the revenue receipts, increase in the tax revenue, also increase in the non tax revenue. फिर हम देखेंगे जो ग्रांट्स मिलती है, ग्रांट्स इन एड्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टेट्स को, उसमें देयर इज दी रिडक्शन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. उसमें रिडक्शन है इन कंपैरिजन टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें रिडक्शन देखने को मिली. फिर हम देखेंगे क्या गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डिसइन्वेस्टमेंट से कोई पैसा कमाया. डिसइन्वेस्टमेंट, रिमेंबर, क्या इज फॉलिंग अंडर दी कैपिटल रिसीट्स. सो कैपिटल रिसीट्स के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट, आपको मैंने बताया कि जब गवर्नमेंट लिक्विडेट कर देती है अपने एसेट्स, यानी अपनी शेयर होल्डिंग कम कर देती है किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज में, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. तो डिसइन्वेस्टमेंट से हमने जीरो मनी गेन किया है. दैट मीन्स कोई डिसइन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश थी ही नहीं. फिर इसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन भी, दिस वाज द कैपिटल रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट वाज आल्सो द कैपिटल रिसीट्स, राइट. सो दिस इज द पिक्चर अबाउट द रिसीट्स, दैट हाउ द गवर्नमेंट हैज अर्नड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. अब हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर की. देखिए, अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन द हाइलाइट्स दैट टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दिस ईयर इज 51,365. सो टोटल एक्सपेंडिचर इज 51,365, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
and other component of the expenditure is the capital expenditure. Under the revenue expenditure, we have the government has spent 40,279 crores, 40,279 crores, and in the capital expenditure the government has only spent 5,647 crores. उसके अलावा जो लोन इस बार डिसबर्स किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा वो है 97 करोड़. एंड इसके अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी इंटरेस्ट पेमेंट मींस कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डेट लिया होगा कोई ना कोई, यानी लोन्स लिए होंगे, उसकी जो इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट, वो इंटरेस्ट जो पे किए जाते हैं दैट कम्स अंडर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि इस साल कितने रहे, 5,105 करोड़. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ओवरऑल एक्सपेंडिचर. नाउ गोइंग फर्दर, अब हम देखेंगे टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्सेस से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितने अर्निंग्स जनरेट की है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने. हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द बजट एस्टिमेट्स of financial year 2022-23, the tax revenue including the central taxes was estimated at 17,660 crore as against the 15,933 crore. That means पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट की थी गवर्नमेंट ने, दैट वाज दिस मच, एंड जो इस साल एस्टिमेट लगाया गया है दैट इज 17,660, यानी 2022-23 के लिए जो एस्टिमेट लगाया गया था दैट वाज 17,660 करोड़. ये हमारी टैक्स रेवेन्यू रही है जिसमें कि इजाफा देखने को मिला है, दैट इज फॉर श्योर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, राइट. सो दिस इज द टैक्स रेवेन्यू. नाउ व्हाट अबाउट द नॉन टैक्स रेवेन्यू. देखिए टैक्स रेवेन्यू में वी हैव कवर्ड ऑल दी डायरेक्ट टैक्सेस, दी इनडायरेक्ट टैक्सेस, दी सेंट्रल टैक्सेस. सेंट्रल टैक्सेस मींस ऐसे कुछ टैक्सेस भी रहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, लेवाई करती है, बट उसके जो अप्रोप्रिएशंस है यानी उसको असाइन किया होता है स्टेट्स के लिए, तो वो पूरा ओवरऑल जो टैक्स रेवेन्यू रहा गवर्नमेंट का वो इतना रहा. Now, what about the non-tax revenue? Non-tax revenue में I have already told you there are few components like fees, fines, penalties. ये non-tax revenues रहती है government की. So these are included in the non-tax revenue, right? So यहाँ से क्या gain किया government of हिमाचल प्रदेश में? Non-tax revenue consists mainly of, देखिए, interest rates, receipts from the sale of power, dividends, profits, public sector. All these things are included in the non-tax revenues. The non-tax revenue is likely to increase to 2,769 crore in the financial year 2022-23 as against the 2,625 crore in the last financial year, that is financial year 2021-22. तो इसमें increase हुआ है non-tax revenue में. देखिए tax revenue में भी increase हुआ है और नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी इंक्रीज हुआ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. नाउ अदर थिंग इज नाउ द नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. देखिए आई विल टेक यू टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए हमने देखा था वी हैव समथिंग लाइक कैपिटल रिसीट्स. Capital receipts में you see we have few things, that is the recovery of loans, we have disinvestment and other thing was borrowings. ये सारे component थे capital receipts के, यानी earning government की. तो हम देखेंगे some of them are known as the debt capital receipts and some of them are known as the non-debt capital receipts. देखिए ये कैपिटल रिसीट्स है सारी, ये भी कैपिटल रिसीट है, ये भी कैपिटल रिसीट है और ये भी कैपिटल रिसीट्स है, यानी कैपिटल कमाई गवर्नमेंट की. तो इसमें से कुछ ऐसे कैपिटल रिसीट्स है जो डेट क्रिएट कर देंगे, यानी जो कर्जा डाल देंगे गवर्नमेंट के ऊपर, दैट दोज विल बी नोन एज द डेट कैपिटल रिसीट्स. और कुछ ऐसे कैपिटल रिसीट्स है, कुछ ऐसी कैपिटल कमाई है जिससे कर्जा गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके का कर्जा नहीं पड़ेगा.
सो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं हम रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी गवर्नमेंट, लेट अस से गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर एग्जांपल हैज़ प्रोवाइडेड द लोन टू सम ऑफ द एंटिटी, वो कोई पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने लोन दिया है। अब जो उनको वो रिकवरी हो रही है लोन की, वो उनकी कमाई है, यस, दैट इज दी कैपिटल रिसीट ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब क्या उससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई डेट क्रिएट हो रहा है? नो, सो दे विल बी कैटेगराइज्ड एज दी नॉन डेट capital receipts. So we can categorize it as non-debt capital receipts. अब let us talk about the disinvestment. अब disinvestment जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी इक्विटी को, अपनी शेयर्स को कम कर दिया है, तो इससे क्या कोई डेट क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट पे? नो, यहाँ पे भी these will be categorized as non-debt capital receipts. अब let us talk about the borrowings. Borrowing means government of Himachal Pradesh, let us say has obtained the loan from any of the bank. तो बैंक से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर लोन ऑक्यूपाई किया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने, वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की कैपिटल रिसीट तो है, कमाई तो है, बट इज इट द डेट कैपिटल रिसीट और इज इट द नॉन डेट कैपिटल रिसीट? तो इट इज द डेट कैपिटल रिसीट, इट इज दी डेट कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि बोरोइंग का मतलब है लोन और लोन का मतलब है डेट, तो डेट क्रिएट हो गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, सो वी कैन कैटेगराइज इट एज दी डेट क्रिएटिंग या डेट कैपिटल रिसीट्स। नाउ रिमेंबर दिस। नाउ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ऐसी कैपिटल रिसीट जिसने डेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पे नहीं क्रिएट किया है, राइट? तो जिसमें हम देखेंगे क्या क्या इंक्लूड होता है। रिकवरी ऑफ द लोन्स, दैट इज द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। इसके अलावा एडवांसेस, डिसइन्वेस्टमेंट, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर। अगर हम देखें बजट एस्टिमेट फॉर दिस द लास्ट फाइनेंशियल ईयर envisages 4500 crore as recovery of loans and no income from disinvestment. तो अगर कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इससे ऊपर वाले पॉइंट्स में हम बात कर रहे थे रेवेन्यू रिसीट्स, अगर हम कैपिटल रिसीट्स की बात करें उसमें भी वी हैव कैटेगराइज्ड द कैपिटल रिसीट्स इनटू द डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स एंड द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स फॉर एग्जांपल द डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स, उससे इस बार रिकवरी ऑफ लोन यानी 45 करोड़ की रिकवरी हुई है लोन्स की गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को। As we have already seen in the highlights कि there is no disinvestment. Disinvestment से गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इस साल कोई भी पैसा नहीं कमाया है। So this is about the non-debt capital receipts. Now other is the revenue receipts. So as per the budget estimate, the revenue receipt of the government for this year was estimated at the 18.62% of the gross state domestic product as against the 21.17% in the financial year 2021-22. तो इसका क्या मतलब है? जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो आपकी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? लेट अस सी दिस केयरफुली। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 18.62% और उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए इट वाज 21.717%. सो देयर इज अ डिप इन द रेवेन्यू रिसीट एस्टिमेशन, राइट? तो यहाँ पे डिप देखने को मिला है रेवेन्यू रिसीट एस्टिमेशन में। उसके अलावा जो टैक्स रेवेन्यू है वो इस बार एस्टिमेट की गई थी 9.4% रहेगी आउट ऑफ द टोटल रिसीट्स ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी की कितने परसेंट हम क्रिएट करेंगे, कहाँ से? टैक्स से, राइट? टैक्स रेवेन्यू से। वो इस बार एस्टिमेट की गई थी 9.04%, राइट? सो दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। अदर इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू इज 1.4% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये टैक्स रेवेन्यू आउट ऑफ द टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9.04% आपका टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिमेंबर इज द फीस, फाइन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट इज ओनली 1.42% ऑफ द टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू रिसीट। नाउ अब हमने रिसीट वाली साइड देख ली है, दैट मीन्स गवर्नमेंट की अर्निंग वाली साइड देख ली है। नाउ वी शैल कवर दी स्टेट एक्सपेंडिचर। अब हम एक्सपेंडिचर को देखने की कोशिश करेंगे।
तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द हाईलाइट्स. सो इस साल का जो पिछली साल का जो फाइनेंशियल ईयर था जिसका डाटा हमें इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है, सो वहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट इज एस्टिमेटेड एट टू बी द 226.29% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. यानी जो खर्चा गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट कितना खर्चे करेगी? 26.29% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. यानी जो गवर्नमेंट की वैल्यू बन रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस की है हिमाचल प्रदेश में, उसका 26.29% इज द टोटल एक्सपेंडिचर. Right? So if we see the gross state domestic product, let us say is 100 rupees. इतने वैल्यू के गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, राइट? तो इसकी 26.2% गवर्नमेंट का खर्चा होगा. टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस द कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? सो आपको ये भी याद रखना है दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो दैट इज 26.29%. नाउ रेवेन्यू, उसमें से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 20.61% रहेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि क्या एसेट क्रिएट कर रहे हैं और लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं गवर्नमेंट की, दैट विल बी ओनली 2.89%. सो दिस इज अबाउट द स्टेट एक्सपेंडिचर. नाउ गोइंग फर्दर, अब हम देखेंगे कुछ इंडिकेटर्स, जो फिस्कल इंडिकेटर्स है स्टेट गवर्नमेंट के, राइट? मेजर फिस्कल इंडिकेटर्स, राइट? अब देखिए रेवेन्यू रिसीट्स को अगर हम देखें, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022 and 23 provides you the information on 3 levels. One is the actual information of the financial year of 2020-21 and the revenue estimate, the revised estimates of the 2021-22 and the budget estimates of the financial year, जिसका वो इकोनॉमिक सर्वे है, राइट? तो ये कह रहा है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स है, एज वी हैव ऑलरेडी सेड, कि वो 18.62% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा, रेवेन्यू रिसीट्स. देन फर्दर इफ वी सी द टैक्स रेवेन्यू, वो रहेगा टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 9.04%. दैट मीन्स दैट इज सेम जो इससे पहले फाइनेंशियल ईयर में था. एंड जो स्टेट ओन यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो रहेगा आपका 1.42. दैट मीन्स देयर इज द इंक्रीज देयर, राइट? देन देयर इज द ग्रांट इन एड. जो ग्रांट इन एड मतलब जो सेंटर से स्टेट्स को ग्रांट्स मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, तो क्या उसमें इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू सी देयर इज द डिक्रीज फ्रॉम द लास्ट, दीज आर द डाटा ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर जिसका हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं. दैट ईयर इज 2022-23. उससे पहले का 2021-22 में ज़्यादा ग्रांट इन एड मिला था गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को, तो इस बार ग्रांट इन एड कम हुआ है. दिस इज वेरी की पॉइंट टू रिमेंबर. देन डिसइन्वेस्टमेंट से जीरो, यानी कोई पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से नहीं कमाया है. उसके बाद क्या रिकवरी ऑफ लोन की हुई है? यस हुई है. कितनी? 0.02%. जो हमने देखा था डाटा कितना है, 45 करोड़ रिकवरी हुई है लोन्स से. फिर हम देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड से. हमने देखा है कि एक्सपेंडिचर का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक्सपेंडिचर में पार्ट है दैट इज 26.29%. तो क्या इसमें इंक्रीज हुआ है? इसमें भी डिप देखने को हमको मिला है. लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इट वाज 27.70%. देन थर्डली इफ वी टॉक अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में तो देयर इज अ डिप. तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी देयर इज अ डिप? यस. और क्या देयर इज द डिप इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो? यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी डिप है. और इसके अलावा जो लोन डिसबर्स किए इस बार गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने, उसमें भी आपको डिप देखने को मिलेगा. और इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने लोन्स लिए हुए हैं उसकी जो इंटरेस्ट पे करने हो रहे हैं उसको हम इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंडर कवर करेंगे. तो उसमें भी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिप. इट हैज प्लमेटेड, राइट? सो दिस वाज द share of the revenue and the expenditure in the total, that is in the gross state domestic product. Now अब हम गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को एक बार फिर से देखेंगे. एज पर द बजट एस्टिमेट, फाइनेंशियल ईयर के जो इस बार का बजट एस्टिमेट है, टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, एज वी हैव ऑलरेडी
सीन दिस इज 51,365, यानी इतना खर्चा इस बार गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, यानी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था उसमें से जो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, यानी सैलरीज, पेंशंस, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, वो जो खर्चा है दैट इज आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 40,279 करोड़। उसके बाद हम अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और फर्दर देखें तो देयर इज द इंक्रीज, यानी पिछली साल जो आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो खर्चा था, यानी जो ऐसा खर्चा गवर्नमेंट ने जो सोचा था करने के लिए, दी एक्सपेंडिचर लाइक दी सैलरीज, दी पेंशंस, दी एक्सपेंडिचर ऑन दी हेल्थ सर्विसेज, दी एजुकेशन सर्विसेज, उसमें देयर इज द इंक्रीज, यानी पिछली साल गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखा था उसमें इंक्रीज देखने को मिला है बाय 8.76%. So there is the increase in the revenue expenditure. You shall remember this, right? उसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी द 20.61%, जो हमने इससे पहले वाले चार्ट में कवर कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे अब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर जो एक्सपेक्ट किया है इस बार वो होगा ₹5,647 करोड़, जो पिछले साल के कंपैरिजन में इज लेस। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देयर इज द इंक्रीज ऑफ 8.7% दैट वी हैव कवर्ड हियर। बट व्हाट अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने स्पेंड किया है क्या, किसमें? क्रिएशन ऑफ एसेट्स में। सो क्रिएशन ऑफ एसेट्स हुए हैं क्या इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर? तो देयर इज द डिप इन दैट, तो इट हैज प्लमेटेड फ्रॉम दी 7,099 करोड़ टू 5,647 करोड़, यानी यहाँ पे आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इस फाइनेंशियल ईयर से पहले फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चा किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, यानी जो एसेट्स क्रिएट किए थे उस पर खर्चा किया गया था इतना, दैट इज 7,099 करोड़, जो इस बार एस्टिमेट किया गया है दैट मीन्स इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 22-23 वो केवल है 5,647 करोड़। दैट मीन्स उसमें एक ह्यूज डिप मिला है। तो वेरियस इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट ये जो फॉल आउट है, फॉल आउट किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इट हैज़ मेनी रीजंस। देखिए वन ऑफ द रीजन इज, देखिए अगर हम देखेंगे जो ग्रांट्स मिल रही है थ्रू वेरियस स्कीम्स टू हिमाचल प्रदेश दैट इज वेरी लेस। अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल MG नरेगा इज द गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो MG नरेगा में government of Himachal Pradesh has got this year only in the last financial year, that is in the 2022-23, only rupees 1,060 crore. That is less from उससे पहले साल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज गॉट रुपीज 1,273 करोड़। तो ये डिक्रीज हुआ है किसमें? कुछ जो सर्विसेज है या कुछ जो ऐसी स्कीम्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है, तो उसमें जो पैसा मिलता था, ग्रांट मिलता था जिसको यूज़ करता था स्टेट गवर्नमेंट, तो वो डिक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स दैट हैज़ उसका इफेक्ट जो पड़ा है वो पड़ा है क्रिएशन ऑफ एसेट्स में, यानी एसेट्स जो क्रिएट होने चाहिए थे वो उस ट्यून से, उस इंटेंसिटी के साथ क्रिएट नहीं हुए। सो इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर देयर इज द नेगेटिव ग्रोथ, दैट इज द -20.45, राइट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देयर इज द इंक्रीज एंड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर देयर इज द डिक्रीज, है ना, राइट। सो नाउ इफ वी सी द कॉम्पोजिशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर हम देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पे खर्चा करती है गवर्नमेंट सैलरीज में, पेंशन्स में, सब्सिडीज में, हम देखेंगे कहाँ पे किस सब सेक्टर में, किस सब कंपोनेंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के गवर्नमेंट हैज स्पेंट। हम देखें तो सैलरी एंड वेजेस में गवर्नमेंट हैज स्पेंट दिस ईयर, गवर्नमेंट हैज spent 15,164 crore. That is out of the total revenue expenditure, it is 29.52%। यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर था
उसमें से भी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसमें से सबसे ज़्यादा खर्चा किया है गवर्नमेंट ने सैलरी में, जो कि कितना है 29.52%। नेक्स्ट इज पेंशन, पेंशन पे 15.17 खर्चा किया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। देन दी अदर पेमेंट इज द इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट जो पे किए हैं गवर्नमेंट ने वो है आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज 9.94%, and then we have the total committed expenditure that is the 54.63%। और सब्सिडीज जो प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने वो आपका है that is out of the total revenue expenditure that is 2.45%, right? So total expenditure यानी इस बार खर्चा कब 2022 और 23 में that has been estimated that is 51,365 crore। So total expenditure is this। फिर उसमें भी हमने खर्चा सबसे ज़्यादा किया है सैलरीज में, फिर हमने जो सैलरीज और वेजेस होती है फिर पेंशन्स में, फिर सब्सिडीज में। So this is how the government has spent। So this was all about this, the expenditure part. Now if we see a very important thing that is the debt position, the next thing is the debt position, debt position of the state। So read this carefully, debt as percentage to gross state domestic product was 39.29% in the financial year 2020-21 as against the 35.2% in the फाइनेंशियल ईयर ऑफ 1920। देखिए इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं डेट टू जीएसडीपी रेशो, जीएसडीपी रेशो, राइट। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हम डिनोमिनेटर में लेते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हम यहाँ पे लेंगे डेट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नोन एज द डेट टू जीएसडीपी रेशो। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम देखें कि हमारी कमाई लेटेस्ट से 100 रुपये की है और 100 रुपये की कमाई में से हमने 20 रुपये, यानी हमारी कमाई 100 है, हमने वो जो कमाई की है 100 रुपये की उसमें से 20 रुपये हमने डेट लिया है, दैट मीन्स 20 हमारी बोरोइंग है। तो ये टोटल आपका हो जाएगा दैट विल बी नियर अबाउट दी 20%। सो रेशो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी रेशो निकलेगी 20%। दैट मीन्स 20% हमारी डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहती है। तो हम वैसे ही अब इसको हम स्टेट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव पे। सो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जब जीएसडीपी कैलकुलेट करेगा तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेंगे और हम नॉमिनेटर में लेंगे द डेट दैट हैज बीन एक्वायर्ड, द लोन्स, द बोरोइंग्स दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। तो हम वी विल गेट टू नो अबाउट द डेट टू डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक हाई है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बोरोड मोर। अगर गवर्नमेंट और अगर डेट टू दिस जीएसडीपी इज लेस, दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बोरोइंग लेस, यानी जो डेट्स लिए है, जो लोन्स लिए है, बोरोइंग्स लिए है वो लेस है। अगर जो ये रेशो है इफ इट इज कमिंग लेस दैट मीन्स द डेट इज लेस, इफ इट इज कमिंग मोर इट इज दैट मीन्स डेट आर मोर। तो इस साल जो डेट टू जीएसडीपी रेशो रहा वो 39.29% रहा इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 1920। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का डेट इंक्रीज हुआ है। सो इफ द डेट टू GSDP is high, that indicates that the debt of the government of Himachal Pradesh is high, right? Now the last component under this is the gender budget. So gender budgeting एक ऐसा budgeting regime है, एक ऐसा budgeting system है that allows the government to provide the equality, right, to showcase the equality through the fiscal policy. देखिए जब गवर्नमेंट वीकर सेक्शन इंटेंसिव स्कीम्स निकालता है और ऐसे बजटरी प्रोविजंस प्रोवाइड करता है जिसमें
you see there are the policies that are women oriented, and that is minorities oriented, that is scheduled caste scheduled tribe oriented, weaker section oriented. तो उसको हम यानी वो जब हम किसी बजट को जेंडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दैट इज नोन एज द जेंडर बजट. सो जो जेंडर बजट है उसके लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है, दैट इज दी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जो जेंडर बजटिंग के लिए नोडल डिपार्टमेंट है दैट इज दी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ये इसके लिए नोडल रहेगा. दैट मीन्स हु इज इम्प्लीमेंटिंग दिस जेंडर बजटिंग, हु इज इंश्योरिंग दिस जेंडर बजटिंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. एंड ये इसमें इश्यूज रेज किए जाते हैं और जो पॉलिसीज है वो फॉर्मुलेट की जाती है. विमेन सेंट्रिक जो होती है, एससी सेंट्रिक होती है, मिनॉरिटी सेंट्रिक होती है, और जो स्पेशली एबल्ड जिनको हम दिव्यांग जन कहते हैं उस वो उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है, दैट इज द इंक्लूजन इन दी, that includes in the gender budgeting. So this was all about the chapter 3 of the economic survey. I hope that this will help you in the preparation in the preparation for various exams. So do share, subscribe our channel, and do give your reviews. Thank you so much, and see you in the next video.